It's a crisp morning as a student of Kendriya Vidyalaya Mashrak gathered excitedly for a journey that promises knowledge, inspiration, and glimpses into their future. Today, under the esteemed PM Sri Exposure Program, they embark on educational tour to IIT Patna. As they step foot onto the steamed ground of IIT Patna, anticipation fills the air. They are welcomed by researchers, professors, and students eager to share their knowledge and experiences. Our students are actively engaged in the physics lab. They observe captivating experiments including electromagnetism, light deflection, and using an oscillometer to experience sound as a wave. Their expressions reveal both surprise and curiosity. In the mathematics department, our professor, Mr. Amit Kumar Burma, Dr. P.K. Srivastav, and Professor Om Prakash fascinately describes the beauty of maths. Symbols come alive as tools for understanding the universe. One thing I remember, Mr. Amit Kumar Burma has said, कि मैथ्स इज लाइक योगा और योगा करने से होता है तो मैथ्स भी करने से होगा. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे. सो नाउ इट्स अ टाइम ऑफ ग्रुप फोटोग्राफी. अ मेमोरेबल मोमेंट कैप्चर्ड आवर स्टूडेंट्स alongside the head of department and the maths professor. Our students science in the group photo against the backdrop of IIT Patna's iconic campus. Our students share their thoughts on this enriching educational trip. Their feedback video reflects the impact of this visit. नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी पीएचडी केंद्रीय विद्यालय की छात्र 10वीं अभी छात्र हूँ. हमें कुछ दिन पहले एक्सपोजर विजिट के तहत आईआईटी भेजा जाने का मौका प्राप्त हुआ. वहाँ पे हमने बहुत नई नई चीज़ें सीखी. सबसे पहले हम लोग फिजिक्स लैब में जो हम किताब में पढ़ते थे हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल हमें वहाँ पे बहुत मज़ा आया. वहाँ पे हमने साउंड वेव कैसे बनती है वो भी देखा और वहाँ पे सर ने हमें लाइट्स की भी बताया कि लाइट्स कैसे बनते हैं. वहाँ पे फिर हम मैथ्स लैब में गए. मैथ्स लैब में वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर से हमने इंटरेक्ट किया. वहाँ पे एक प्रोफेसर की बात मुझे अभी तक याद है. उन्होंने बोला था कि हम जितना ही सैम्पल्स को डिफाइन करेंगे उतना मैथ्स हमारा ईजी होगा. वो बात अभी तक मुझे याद है और मुझे वो बात बहुत अच्छी भी लगी. और वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत पेशेंस हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स आजकल स्कूल के भी पेशेंट नहीं रहते जहाँ आईआईटी का एक विजिट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और ये मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका प्राप्त हुआ. मैं सुमन कुमार पीएमसी केंद्रीय विद्यालय मशरक की छात्र हूँ. हमारे स्कूल के द्वारा एक एक्सपोजर विजिट करवाई गई थी आईआईटी पटना में. Namaskar, I am Arjun Kumar of PM Sri Kendriya Vidyalaya Mashrak. I currently study in class 10th. Few days back, I with my classmates were given the chance to go to IIT Patna due to the grace of our principal ma'am, dear Ranjanatha. It was a whole new experience for us. The IIT was a very big institute. The buildings were very, very large and the techniques to teach and study were very new to us. The people there were very nice, very modest. Even though they were very good at what they were doing, they were still very humble to us. They were trying to teach us as what it is. Even though we were not able to understand everything, it was a whole new experience for us. The equipments there were very fast and very advanced. The equipments that we see in our book were there as a live example, and we were able to even use some of that to see how it works. And I would like to thank our principal ma'am for such an exposure visit. And this kind of visit has opened my eyes on how the world works, how big of a world it is, and how such things exist in this world that I have not seen yet. And that would be all. नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मशरक कक्षा 10वीं का छात्र हूँ. सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय का सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके योगदान से एक्सपोजर विजिट के तहत हमें आईआईटी पटना जाने का मौका मिला. आईआईटी पटना में सबसे पहले हमें केमिस्ट्री लैब में जाने का मौका मिला जहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स किए. वहाँ के प्रोफेसर से इंटरेक्ट किए. आगे चल के हम लोगों ने वहाँ के जो
बारे में जाना और मैथ्स में अपनी रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों ने मैथ्स लैब में गए, वहाँ के प्रोफेसर से हमने इंटरेक्शन किया। सबसे पहले तो हमने जाना कि मैथ्स एक योगा की तरह है जो कि प्रैक्टिस करने से होता है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। उसके बाद मैथ्स के टीचर से हम लोगों ने मैथ्स के बहुत सारे सिंबल्स के बारे में चर्चा की और हम लोगों ने वहाँ पे अपना रिव्यू किया। नमस्कार, मैं प्रताप PMC केंद्रीय विद्यालय मसरख का छात्र। हमें कुछ दिन पहले एक्सपोजर विजिट के अंतर्गत IIT में जाने का मौका मिला, जहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी यादें बनाई, बहुत कुछ सीखा। जैसे कि सबसे पहले हम जब फिजिक्स लैब में गए, वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब के बारे में जाना। फिर हम लोग जब मैथ लैब में गए तो वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखा कि गुड मैथमेटिक्स कैन बी डन विद गुड सिंबल्स। और फिर हम लोग जब वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट किए, फिर हमें पता चला कि IIT इंस्टीट्यूशन जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन से इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है, बच्चों में परसिवरेंस है, डेडिकेशन है। और वहाँ से मेरी उम्मीद, मेरे लिए मैं भी सोचूंगा कि मैं IIT का क्रैक करूँ और IIT के बच्चों के साथ मैं 3 of our dedicated teachers shared their experiences, emphasizing the value of such exposure. नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूँ राहुल कुमार और केंद्रीय विद्यालय मसरख में PGT हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथ 2 महनीय शिक्षक हैं, श्री हेमंत कुमार, ये विज्ञान के शिक्षक हैं, TGT साइंस हैं, और हमारे साथ हैं सुश्री अलका मैम, ये PGT कॉमर्स हैं। दरअसल हम लोग 4 अप्रैल 2024 को एक्सपोजर विजिट पे IIT पटना पहुंचे अपने विद्यालय के 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ। उस एक्सपोजर विजिट में छात्रों का अनुभव कैसा रहा, हम सब का अनुभव कैसा रहा, इस चीज़ के लिए एक छोटा सा क्लिप, एक छोटा सा फीडबैक वीडियो हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले हेमंत सर से जानेंगे कि उनका जो अनुभव है एक्सपोजर विजिट का IIT पटना का, वो कैसा है। हेमंत सर। राहुल सर, ये एक्सपोजर विजिट जो है अपने आप में ही, जिसका नाम है एक्सपोजर विजिट, तो हम बच्चों को जब IIT पटना ले गए तो बच्चों को बेहतरीन अनुभव मिला है। बच्चे का जो ड्रीम है उसमें कहीं पे नया पंख लगा है। बच्चे का जो IIT प्रेस्टीजियस आपका इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चे जाने का ड्रीम देखते हैं, बचपन से लगे रहते हैं, अब वहाँ जाके वो देखते हैं इतना बढ़िया लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है उन्हें, वो माहौल मिलता है, स्टडी करते हुए स्टूडेंट मिलते हैं, उनके साथ लगे हुए प्रोफेसर मिलते हैं, लाइट है ना, बहुत सारी चीज़ें तो हमें सीखने मिलती है उनके बिहेवियर से। और सबसे बड़ी बात है कि वो होता है कि हमें वहाँ पहुँचना है और आप वहाँ पे पहले किसी कारण से अगर PM श्री योजना के तहत आपको एक मौका मिलता है, आप वहाँ जाते हो, तो ये अपने आप में बच्चों के लिए कहें तो ड्रीम कम्स ट्रू तो नहीं कर सकते, बट ड्रीम को कंक्रीट किया है इस एक्सपोजर विजिट में। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही हेमंत सर ने कि हमारे सपनों को उड़ान देने का काम करता है ये एक्सपोजर विजिट। मैं यही सवाल और यही अनुभव अलका मैम का क्या है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो अलका मैम, आपका अनुभव कैसा रहा इस पूरे विजिट के दौरान, कृपया आप बताइए। Thank you, Rahul sir, for giving me this opportunity to share my experience on this platform. If I talk about the Indian Institute of Technology Patna, it is one of the new IIT among India. And if I talk about the infrastructure facilities provided by there were libraries, sports complex, well-equipped labs, and also different type of and also the green and clean campus. वाह, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हमें अनुभव कराता है कि किस तरीके से हमारा जो भारत है, हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है और हमारे भारत का जो स्टडी करने का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो कैसा है, उसके बारे में बहुत कमाल की बात आपने कही। एक और जो सवाल है मेरे जहन में, और यह सवाल एक शिक्षक के तौर पे ज़्यादा है। कारण क्या है कि एक शिक्षक सबसे अच्छा शिक्षक तभी हो सकता है जब वह जीवन पर्यंत एक अच्छा विद्यार्थी हो। तो हमें एक शिक्षक के तौर पे जो हम बार बार सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं, तो मेरा सवाल ये है मैम कि आपने क्या सीखा वहाँ के प्रोफेसर से, आपको कैसा लगा, कि आपको क्या लगा कि आप क्या बदलाव कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में। सर, एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ तो IIT के जितने भी प्रोफेसर्स थे उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस लिए और मुझे भी एक स्टूडेंट की तरह पीछे बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिला और ये पता चला कि कैसे हम अपनी टीचिंग को इनोवेटिव वे में बच्चों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड सिखा सकते हैं। और जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट 2005 में लिखा हुआ है, एक प्रिंसिपल
based on the experiences, real life experiences of the student. So for this visit, I am very much thankful to our principal ma'am, Mrs. Ranjana Jha, जिन्होंने हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसे इंस्टीट्यूट में जा सके और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम। हेमंत सर, यही सवाल मेरा आपसे है कि आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है, आपने क्या सीखा वहाँ एक शिक्षक के तौर पे, वहाँ के प्रोफेसर से हमने क्या सीखा? बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस और साइंस का टीचर है, साइंस बैकग्राउंड है, और बच्चों को वहाँ पे जब पहली बार फिजिक्स लैब में हम लेके पहला नंबर तो वहाँ के जो स्टाफ थे जो इतने पोलाइट थे, हमारा टाइम था बट हम कुछ कारणों से डिले भी हो गए थे ट्रैफिक के कारण, बट उसके बाद भी जो उन्होंने अपने क्लास को अरेंज किया है ना, कि जिसके लिए वो कमिटेड थे, हमें उन्होंने टाइम दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो मैं खुद बता रहा हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि मैं बताऊँ कि वहाँ जो मुझे इक्विपमेंट दिखा ऑसिलोमीटर, जैसे कि हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि साउंड जो है वेव के फॉर्म में, ठीक है। और मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी से भी हूँ, तो अभी तक मैंने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है। और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और बच्चे जब पूछते हैं, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना साउंड, तो जब साउंड वेव है तो उसे स्लिंकली से ज़्यादा दिखा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक मशीन रखा हो और उस मशीन में आप वीडियो में देखेंगे कि बच्चे उसमें जाके बोलते हैं और वो मशीन जो है वेव्स बनाती है, तो अपने आप में एक हैरान करने वाला एक्साइटमेंट वाली चीज़ें थी। और इससे क्या हुआ कि हमें बार बार बच्चों को रटाना नहीं पड़ रहा है कि जो है साउंड जो है वो एक वेव नहीं चल रहा है, बच्चे अपने आप सीख रहे हैं। तो करके जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग की बात होती है, वहाँ पे हमने देखा और वो मुझे मोटिवेट भी किया कि मैं अपने टीचिंग में उस चीज़ को लेके आऊँ। बहुत सुंदर, क्या बात है। मुझे लगता है कि यह वीडियो की लंबाई को ज़्यादा हो रही है, बस एक आखिरी सवाल है आप दोनों से कि इस टाइप का जो एक्सपोजर विजिट है वो विद्यार्थी के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, संक्षिप्त में इसका उत्तर दे दें तो मेहरबानी होगी। हाँ देखिए, बच्चों के जो होलिस्टिक और सर्वांगीण विकास की बात करें तो हमें ऐसे ट्रिप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर जब हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है तब से ही वो जैसे हम कोलैबोरेशन दिखते हैं कि हम टीम में कैसे जाएं, है ना, हमें सिविक सेंस डेवलप करते हैं कि हम जा रहे हैं। जैसे कि हमारे बच्चों को हमने साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि आप कोई भी जो कचरा है, रैपर है, सर स्कूल के बाहर मतलब बस के बाहर नहीं फेंकें। सोसाइटी में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम वहाँ से सिखा रहे हैं। बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, बाहर के लोगों को समझ रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल उनसे बेहतर है या ख़राब है, अपने कहाँ इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स देखते हैं हम अपने। उसके बाद देख रहे हैं कि हम वहाँ के कैंपस, चूँकि वो IIT है इसलिए क्लीन नहीं है, हमारा KB है वो भी क्लीन होना चाहिए, हमारा एक सरकारी स्कूल है वो भी क्लीन होना चाहिए, ये नहीं कि IIT है तो ही क्लीन है। तो क्लीनिंगनेस के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो हमारा सिविक सेंस होता है वो बहुत जरूरी होता है। डिसिप्लिन बिल्कुल, वहाँ पे जब हम देखे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, लग रहा था कि ये कोई पढ़ाई करने के लिए, मतलब जैसे होता है ना तपस्या करने के लिए, अगर कोई तपस्वी अगर कोई शांत वातावरण ढूंढता है तो वो माहौल आपको IIT पटना में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ अपने विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती रंजना झा मैम का, साथ ही साथ पटना संभाग के AC सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम वहाँ विजिट कर पाए, हमने बहुत कुछ सीखा। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ IIT पटना के प्रोफेसर्स का, जिन्होंने बच्चों के साथ साथ हम शिक्षकों को भी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने हमें समझाया कि कैसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को मुख्यधारा में ला सकते हैं, कैसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को महसूस करा सकते हैं कि अगर उसे पढ़ना है तो पढ़ना क्यों है, अगर उसे डिसिप्लिन में रहना है तो डिसिप्लिन में क्यों रहना है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।